بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سب بول ٹی وی اور ہم حاضر ہیں کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ۔ ویسے تو گزشتہ کچھ دنوں سے بہت ہی ناخوشگوار خبریں سامنے آ رہی تھیں، لیکن حال ہی میں جو کام ہو گیا ہے وہ ان سب سے زیادہ ناخوشگوار اور اذیت ناک ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یہ خبر انتہائی تکلیف دہ ہے۔ کوئی بھی شخص اس بات کی اس حد تک کنفرمیشن کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ان کی سوچ کے برعکس سب کچھ ہو گیا، کیونکہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں مفاہمتوں کا روپ دھار رہی ہیں، اس لیے انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، سب بول ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور تمام لیٹسٹ اپڈیٹ سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ناظرین، اس خبر کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہے، ایک مختصر سے حصے کی وضاحت بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک یا قرب قیامت دین جہاں سے نکلا تھا وہاں ہی سمٹ جائے گا۔ یہود و نصارہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ وجہ ان کی کثرت نہیں بلکہ مسلمانوں کی دین سے دوری اور دنیا سے محبت ہوگی۔ تو ناظرین، قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ خبر اناؤنس کی ہے اور اپنے ٹویٹ میں بھی اس نے یہ کہا کہ آج ایک بہت بڑی بریک تھرو ہوئی ہے دو عظیم دوستوں میں ایک تاریخی امن معاہدے کی صورت میں، اور یہ دو دوست ہیں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات، یعنی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر بی بی سی نے بھی شائع کی ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی متحدہ عرب امارات ہے جو ایک مسلم ملک ہے اور OIC کا ممبر بھی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس کے بالکل بھی سفارتی تعلقات نہیں تھے۔ اردن اور مصر کے ساتھ اسرائیل کا امن معاہدہ ہوا تھا، لیکن وہ بھی 30 سال پرانی بات ہے۔ آپ کو بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، تو اس منصوبے کے ایک بڑے ٹریک کو اسرائیل نے حاصل کر لیا ہے۔ بہت عرصے سے اسرائیل جو چاہتا تھا آج اس نے وہ حاصل کر لیا ہے۔ تمام اسلامی ممالک ایک تسبیح کی طرح ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس تسبیح کا ایک دانہ الگ ہو گیا ہے، یہ تسبیح بکھر چکی ہے۔ بلا شبہ ان یہود و نصارہ نے کبھی مسلمانوں کو مغلوب کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ جن کے خلاف ہماری ایک مستقل جنگ ہے، جو دجال کے ساتھی ہیں، اب وہی مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہے ہیں۔ مسلمان ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن رہے ہیں۔ اب یہ تعلقات کس بنیاد پر بنائے جا رہے ہیں، کیا کیا شرائط ہیں اور آنے والے دنوں میں ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے، یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا آگے چل کر بتایا جائے گا۔ دیکھیں، اسرائیل کے لیے یہ ایک کامیابی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کر لیا ہے بلکہ اس کے ساتھ امن معاہدہ تو ایک دکھاوا ہے، بہت سارے خفیہ معاہدوں کی بھی ڈیل ہو گئی ہے۔ بہت سادہ زبان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اسرائیل نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہی چن کر اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ نیتن یاہو نے اپنا ایک ٹویٹ جاری کیا ہے اور اس فتح کو اس نے کیسے بیان کیا وہ بھی ذرا سنیں اور دیکھیں۔ اس نے یہ ٹویٹ عبرانی زبان میں جاری کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں اس نے اسرائیل کا جھنڈا بنایا ہے اور ساتھ میں لکھا ہے ایک تاریخی دن۔ اب نیتن یاہو، صدر ٹرمپ اور UAE کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زاید انہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے کہ اسرائیل اور UAE کے درمیان یہ امن معاہدہ مشرق وسطی میں قیام امن میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اردن کے مقبوضہ علاقے جو کہ اسرائیل اپنے ساتھ زبردستی ضم کرنا چاہتا ہے، فی الوقت اسرائیل اس کو معطل کر دے گا۔ فی الحال یہ ایک شرط اس امن معاہدے میں رکھی گئی ہے، لیکن اس پورے معاہدے میں یا اس کے ساتھ جڑی کسی بھی سٹیٹمنٹ میں مظلوم فلسطینیوں کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں بیت المقدس کا ذکر نہیں ہے، اس میں مسجد اقصی کا ذکر نہیں ہے، اس میں اسلام کا یا مسلمانوں کے متعلق کسی بھی معاملے کا ذکر نہیں ہے۔ اب اس میں ذکر کس کس بات کا ہے وہ بھی ذرا سنیے گا۔ امریکہ میں UAE کے سفیر یوسف العتیبہ نے یہ کہا ہے کہ یہ خطے کی اور سفارت کاری کی جیت ہے، اس سے کشیدگی کم ہوگی اور ایک مثبت تبدیلی خطے میں آئے گی، اور آنے والے وقت میں اسرائیل اور UAE کے وفود کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی۔ اب یہ ملاقاتیں ہوں گی کن ایشوز پر، یہ ذہن میں ذرا رکھیے گا۔ نمبر 1 سرمایہ کاری، نمبر 2 سیر سپاٹا یعنی سیاحت، نمبر 3 براہ راست فضائی معاہدے یعنی بنا کسی مداخلت کے ادھر کی فلائٹس ادھر اور ادھر کی فلائٹس ادھر،
नंबर 4 सिक्योरिटी यानी एक दूसरे की हिफाजत की भी जिम्मेदारी, और नंबर 5 मवासलात यानी टेलीकॉम नेटवर्क, इंटरनेट और मवासलात से जुड़ी हर सहूलत एक दूसरे से शेयर होंगी। इसके अलावा साइंसी मैदान में यानी टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की मदद करेंगे। एनर्जी के शोबे में सेहत, सकाफत, माहौलियात और अहम चीज़ ये कि एक दूसरे के मुल्क के अंदर अपने अपने सिफारत खाने खोलेंगे। अमन मुआहिदा तो तब इसको कहा और तस्लीम किया जाता जब इसराइल इन शराइत पर अमल की यकीन दहानी कराता कि मस्जिद अक्सा और मैली आंख नहीं रखेगा, यरूशलेम और एनेक्सेशन की बात यानी इसको जम करने की बात नहीं करेगा, फलस्तीनियों पर जुल्म सितम खत्म करके उनको आज़ाद करेगा। मजीद ये कि जो जेल उसने बनाई है उस इलाके के चारों अतराफ में कई मीटर ऊंची दीवार बनाकर और उसमें बसने वाले लोगों की सेहत, जानो माल गर्ज कोई भी ऐसी शराइत नहीं रखी गई जो मुसलमानों के मफाद में हों। जनवरी 2020 में इसराइली वजीर दाखिला ने यह बयान जारी किया था कि अब इसराइली शहरी सऊदी अरब में सफर कर सकेंगे। कानून इसराइल ने बनाया और मंजूरी सऊदी अरब ने दे दी, यानी यहूदी कारोबार के लिए, रिहाइश के लिए वगैरह वगैरह सऊदी अरब सफर कर सकते हैं। नाजरीन, अपने मुसलमान होने और पाकिस्तानी होने पर फख्र करें। अब वाहिद मुल्क पाकिस्तान ही रह गया है जिसके पासपोर्ट पर भी वाज़ेह लिखा है कि सिवाय इसराइल के तमाम ममालिक के लिए ये पासपोर्ट कारआमद है। और अब लग भी यही रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया है जो तन्हा इसराइल के लिए खतरा है और जिसकी तरफ जंग धकेली जाएगी, क्योंकि जब ये यहूदी ग्रेटर इसराइल बनाएंगे तो तकरीबन सभी मुस्लिम ममालिक को इसमें जम करेंगे। नक्शे के मुताबिक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिस्र, सऊदी अरब, कुवैत, लबनान, इराक, ईरान वगैरह सब इसमें जम हुए दिखाए गए हैं। उस वक्त जब ये थर्ड टेम्पल तामीर करेंगे, जब ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक खुदाई का दावा करेंगे तो दुनिया के ऊपर कंट्रोल की कोशिश करेंगे, जो कि ये इस वक्त कर भी रहे हैं। एक सीरीज इनके पलीद मंसूबों की है जिसमें यरूशलेम को इसराइल में जम करना, मुसलमानों का कत्ले आम करना, मस्जिद अक्सा को शहीद करना, थर्ड टेम्पल बनाना और आखिर में ये सारी ताकत दज्जाल के मातहत करके दज्जाल के ही जरिए खुदाई का दावा करना। हालात के मुताबिक कुछ ऐसा लग रहा है कि मुसलमान इन खबीस यहूदियों के आगे सरेंडर करते जा रहे हैं। यूएई जिसकी आमदन ही सैर व सियाहत की वजह से थी, उसकी मईशत का ग्राफ इंतहाई हद तक गिरने के बाद इसने भी इसराइली दामन थामने का फैसला कर लिया, यानी कुछ खौफो डर से सरेंडर कर रहे हैं, कुछ पैसे के लालच में ईमान फरोख्त कर रहे हैं। रह गया सऊदी अरब, तो नाजरीन उसने बाकायदा इसराइल के साथी होने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन असल में हर लिहाज से वो इसराइल का इत्तेहादी है। ईरान के लोग कुछ भी हैं लेकिन मुसलमान मुल्क है, इसराइल फिर भी उसके खिलाफ है। और याद रखें, हमारी आखिरी जंग दज्जाल और उसके साथियों यानी यहूदियों के खिलाफ होगी, न कि ईरान के खिलाफ। तुर्की के एक मुसन्नफ का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस मुसन्नफ ने कहा था कि इसराइल को ईरान के खिलाफ सऊदी अरब से बेहतर कोई इत्तेहादी नहीं मिल सकता। सऊदी अरब इसराइल के लिए एक ड्रीम स्टेट यानी ख्वाबों की रियासत है, यानी जो कामयाबियां मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका इसराइल को नहीं दिला सकता वो सब अकेला सऊदी अरब दिला सकता है। और ये बात पिछली वीडियो में आपको शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान और OIC के इजलास के मुतल्लक वीडियो में बखूबी समझाई गई थी कि किस तरह इसराइल की कुर्बत में सऊदी अरब और चंद बिकाऊ मुसलमान मुल्क मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, उनकी जानों के सौदे कर रहे हैं। और यहाँ तक कि सऊदी उलमा के जरिए ये बात आम की जा रही है, आप मुसलमानों और यहूदियों के साथ अच्छे ताल्लुकात को कुरान और सुन्नत से साबित करने की कोशिश करें, क्योंकि अनपढ़ से अनपढ़ मुसलमान भी कुरान और दीन के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर देता है। यानी इसराइल उलमा को खरीदेगा और अपनी मर्जी के फतवे जारी करवाएगा। यहूदियों के साथ गुजरे अच्छे वक्त के बारे में लोगों को बताएं, सुलह हुदैबिया के बारे में बताएं, सिर्फ यहूदियों की अच्छाइयाँ बताएं और मनफी इम्पैक्ट्स को छुपाएं। ये ना बताएं कि वो फलस्तीन में जुल्म और सितम का मुजरिम है, ये ना बताएं कि लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में धमाका इसने कराया, कि वो दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करके मुसलमानों का कत्लेआम कराते हैं। बस ये बताएं कि इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात ही हमारी बेहतरी का जरिया हैं। तो नाजरीन, हालात कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे हिफाजत और तरक्की का ये झंडा हर तरफ से गिरता गिरता अब पाकिस्तान के हाथ में आ गया है। आर्मी चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं एक आखिरी कोशिश करने, उस मजमूम वाक़े से पहले जो अब UAE के साथ हो चुका है। सऊदी अरब में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात का ऐलान कर दे और पाकिस्तान इस तमाम सर्कल में तन्हा रह जाए। हामिद मीर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से इसराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में राय पूछी थी, तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया था कि जो कुछ पूरी दुनिया में इसराइल मुसलमानों के साथ कर रहा है, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इसराइल के साथ कोई भी ताल्लुक बनाऊं।
हत्ता कि यह हुकूमत भी कभी ऐसा नहीं करेगी। यूएई के इस इकदाम के बाद फिल वक्त तो यूएई की आवाम का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। आप ये यकीन रख लें कि अरबों से कश्मीर के लिए मदद की दरख्वास्त सांप के मुंह से या मगरमच्छ के मुंह से शिकार खींचने वाली बात होगी। फिर ओआईसी को भूल जाएं, वो ओआईसी फिर मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों की आवाज और उन पर होने वाले जुल्म सितम को दबाने वाला प्लेटफॉर्म होगी। हालांकि अब भी ऐसा ही है, लेकिन अब और तब में बहुत वाज़ेह फ़र्क हम सबको नज़र आ जाएगा। इस ओआईसी को हमेशा के लिए छोड़कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो सिर्फ उन ममालिक पर मुश्तमिल हो जो कश्मीर की बात करें, जो बर्मा की, फ़लस्तीन की बात करें, जो इस्लाम की बात करें। बहुत से मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जैसे बांग्लादेश, ईरान, तुर्की, मलेशिया वगैरह जो कुफ़ार के खिलाफ और इस्लाम पर मुत्तहिद हैं। उनको साथ मिलाकर उनकी ताकत को बढ़ाया जाए, लेकिन इन बद्दू अरबों ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि आगे क्या होगा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। इन मुनाफिकों के मुमालिक को सजाया पाकिस्तानियों ने, अपनी जिंदगियां वहां गुजार दी। आज भी सिर्फ 10 लाख तो सऊदी अरब में ही पाकिस्तानी वर्कर्स हैं और सिला क्या मिला क्या मिलेगा ये बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है। पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा उन वर्कर्स की बेदखली की सूरत में, फंड्स की सूरत में, मुआहदों की मनसूखी की सूरत में। शायद इन बेदिमाग अरबों को ये बात समझ आ जाए कि इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के लिए इन सब को खा जाएगा। इसलिए आंखें खोलो और अपने साथ इसराइल के ताल्लुकात पर नज़रसानी करो। बहरहाल नाजरीन, इस वाक़े के साथ मुसलमानों की पसपाई का एक तासर उभर कर सामने आ गया है। इसके असरात बहुत जल्द नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आने वाले वक्त में क्या होता है ये सब आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब बोल टीवी बताता रहेगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब बोल टीवी के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।